من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدى مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھ محمد وآل محمد سے گفتگو چل رہی تھی، اگر آپ ذہن میں ہو جہاں ختم ہوئی تھی وہاں سے آگے چلتا ہوں۔ یاد رکھیے گا یہ اللہ کی طرف سے حجت ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے حجت ہو اس کی طاقت کو ناپنے کے لیے اور اس کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس عقل ہے ہی نہیں۔ ہم تو بس دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ کے مان سکتے ہیں۔ دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، ماننے کے لیے حلال ہونے کی ضرورت ہے۔ سمجھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ایک بزرگ عالم دوست کا ایک جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ باپ کا نام ہے علی، بیٹے کا نام ہے حسین۔ باپ کا نام ہے علی، بیٹے کا نام ہے حسین۔ پھر دوہرا رہا ہوں، باپ کا نام ہے علی، بیٹے کا نام حسین۔ باپ سمجھ میں نہیں آئے گا، باپ سمجھ میں نہیں آئے گا اگر نسل پاک نہ ہو، بیٹا سمجھ میں نہیں آئے گا اگر شکم پاک نہ ہو۔ دونوں کو سمجھنے کے لیے پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ پاکیزگی ہوگی تو حجت خدا سمجھ میں آئے گا۔ خدا کی قسم جو جملے کہنے جا رہا ہوں بہت غور سے سننا۔ دیکھو ایسا ہے، مولوی چاہتا ہے اس کا بیٹا مولوی ہو، ٹھیک ہے؟ ایک بادشاہ چاہتا ہے اس کا بیٹا بادشاہ ہو، ٹھیک ہے؟ ایک پولیٹیکل آدمی چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا پولیٹیکل ہو۔ جو بزنس مین ہے وہ چاہتا ہے اس کا بچہ بزنس مین ہو جائے۔ وہ اس کے لیے جو کچھ بھی اسے کرنا ہوتا ہے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی سوچ میں اور اپنے پلان میں کامیاب ہو۔ غور نہیں کر رہے ہو میرے جملوں پہ، غور نہیں کر رہے ہو۔ ادھر رسول نے 1.25 لاکھ میں اپنے علی کا اعلان کیا، ٹھیک ہے؟ اعلان ہو گیا نا، مگر گھر کی حالت یہ ہے کہ ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ گھر کی حالت یہ ہے کہ 3 دن کا فاقہ ہوتا ہے۔ غور کرو، میں اس مسجد کے اس بڑے ممبر سے خطاب کر رہا ہوں، پوری توجہ۔ گھر کی حالت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر دیکھیے، تخت ہے، تاج ہے، درہم و دینار ہے، فوجیں ہیں، گھوڑے ہیں، لوگ ہیں، سلامی دینے والے ہیں، موقع پرست ہیں، ریاکار ہیں، مکار ہیں، دغاباز ہیں۔ یہ جملے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ اس دربار کی پہچان ہے، ہمارے فرش کی نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا اہل بیت کا حق تھا وہ غصب کیا جانے لگا، اور اس حد تک غصب کر لیا گیا۔ اب یہ علماء بیٹھے ہیں میرے، میں ان کی بارگاہ میں پلٹ رہا ہوں۔ اس حد تک غصب کر لیا گیا کہ علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور سیدہ سوال کرتی ہیں، یا علی، اے ابو الحسن، باہر کے حالات کیسے ہیں؟ فرماتی ہیں، بنت رسول، میں کیا بولوں؟ وہ جو مجھے پہچان لیا کرتے تھے وہ اب پہچاننے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ جو مجھے دیکھ کر سلام کیا کرتے تھے، سلام تو چھوڑو، اب وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ ٹیلی ویژن پر آپ کی بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میں دنیا میں سننے والے ہر انسان کو اور انسان دوست انسانیت کو بتانا چاہتا ہوں، سب سے بڑا حملہ جو کیا گیا آتنکوادیوں کی طرف سے وہ یہی تھا کہ اہل بیت سے ان کا حق چھین لیا گیا۔ اہل بیت سے ان کا حق چھین لیا گیا۔ جب وہ جو بھلانے والے تھے نا، وہ اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ علی کو بھلوا دیا جائے۔ بر علی کانوں سے یاد نہیں رہتا، نسلوں سے یاد رہتا ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، تو لوگوں کے پاس اس زمانے میں علی کا جواب نہیں تھا۔ دشمن تو بہت ہیں، دشمن بہت ہیں،
अली की दुश्मनी में याद रखना, जब गुफ्तगू करना अपने मौला के हवाले से तो पहले दिल में दुआ करना, रुजू करना कि मौला जबान में ताकत दे ताकि मैं तेरी फजीलत में जबान खोल सकूं। इंग्लिश में एक जुमला है, स्टोरी टेलर, मतलब वाक़े को सुनाने वाला, बातों को बताने वाला। अली की फजीलत में स्टोरी टेलर नहीं चलते। अली की फजीलत में पाक नस्लें और पाक गोद में पाले गए बच्चों की जबान चला करती है। याद रखिएगा, ये जो आवाजें आपकी निकल रही है ना, ये मेरे पढ़ने की वजह से नहीं निकल रही हैं, उस पाकीज़ा गोद की वजह से निकल रही हैं, पाकीज़ा गोद की वजह से। और ये तादाद बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। गदीर में भी कितनी थी मैंने कल आपके सामने बयान किया है। इस तादाद की हिफाजत कीजिए। उसका बोलना, अहले बैत के बारे में, उनकी अजमत का कसीदा और ऐलान पढ़ना। मुझे याद आ रहा है, मैंने अलीपुर में एक जुमला कहा था, बोल देता हूं यहां भी। अल्लाह का शुक्र है कि आपके पास नारा है तो आप लगाते हैं। इस्लाम में तो एक अजीब चीज मैं आपको बताऊं, पैगंबर की सीरत बता रहा हूं, मेरे सुनने वाले बहुत दूर दूर तक मुझे सुन रहे हैं। अगर दो घोड़े पे सवार लोग आपस में बात करते थे तो पैगंबर उनसे कहते थे उतर के बात करो, जानवर पे बैठ के बात ना करो। तुम्हारे सफर के लिए उसका इस्तेमाल है, कुर्सी नहीं है कि बैठ के जितनी देर तक बात कर रहे हैं बात करो। हाँ? और एक जुमला मैं हिंदुस्तान में हमेशा कहा करता हूं अपने सारे नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए कि भाई, पैगंबर की जिंदगी में एक घोड़ा और एक नाका है। घोड़े का इस्तेमाल कम है, नाका का इस्तेमाल ज्यादा है। क्यों भाई? इसलिए कि अरब में नाका सुलह के लिए इस्तेमाल होता है और घोड़ा जंग के लिए। जो अपनी सवारी से सुलह का पैगाम देता हो, उसका चाहने वाला आतंकवादी कैसे हो सकता है? और फिर यही हुसैन है, दे दो। अरे जाते हो ना करबला, कफन लेके आते हो ना। वो जो दुनिया से बेकफन चला गया, उसके बारगाह से कफन लेके आते हो, भूखे जाते हो, खाना लेके आते हो, नस्लों के लिए रिस्क लेके आते हो, हैं? हाजतें लेके बैठे रहते हो। कमाल की बात यह है, दुनिया के किसी बारगाह में भिखारी बन के खड़े हो ना तो जिल्लत महसूस होती है। ये वो बारगाह है जहां भिखारी बन के खड़े हो तो फख्र महसूस होता है, फख्र लगता है कि हम उनके भिखारी। आज की शब और आज की तारीख हमारे यहां जनाब कासिम का तस्करा होता है। उसी हसन की निशानी जिसने दरबार में बताया कि हम कौन हैं। मैं जब कासिम कहता हूं तो मुझे पता है, जो मजलिसी दोस्त मेरा मजमा है, जो उलमा रिवायत को समझते हैं, जो महसूस करते हैं करबला में सबसे दर्दनाक वाक़यों में से कौन कौन से वाक़े हैं, वो बेचैन होकर रोने लगते हैं। सैयद सज्जाद का उसूल था, सैयद सज्जाद का उसूल था, जब भी कासिम का जिक्र आता बड़ा तड़प के किया करते थे। मैं पूरी जिम्मेदारी से, साहिल कहता है मौला घर में शादी है, हम अहले बैत ने बाहर निकलना बंद कर दिया है। मौला तेरी शर्तों पे, मौला फर्श-ए-अज़ा बिछाएंगे, मजलिस करेंगे हमारी खोजा बिरादरी में। मुझे दूसरों का तो नहीं पता, इनके यहाँ जब शादी का प्रोग्राम होता है तो शादी में मजलिस पहले बर्पा कर जाती। कुछ बदबख्त होंगे जो ये सोचते होंगे शादी के दिन कैसी मजलिस, ऐसे घर में कैसी शादी जिसमें मजलिस ना हो। समझ रहे हैं? याद रखना मेरी बात को। मजलिस फर्श-ए-अज़ा बिछाएंगे, मौला फर्श-ए-अज़ा बिछाएंगे। मौला आए, दूल्हे को देखा, गश खा के गिर पड़े। वो कहता है मजलिस तो अभी हुई नहीं मौला, इतना गिरिया क्यों? कहा तूने इंसाफ नहीं किया। कहा मौला मुझे समझ नहीं आया, अगर गलती हो गई है तो माफ कर दे। मौला अभी तो मसाइब शुरू भी नहीं हुआ। कहा मैंने दूल्हे को देखा, मुझे मेरा कासिम याद आया। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। हाँ बस ऐसे ही रोया करो, ऐसे ही रोया करो बावाज़ बुलंद। मुझ कल्ब रुशैद को इस मिंबर की कसम है, अगर बावाज़ बुलंद रोना तुम्हें आ गया तो तुम्हें दुआ मांगने की जरूरत नहीं है। तुम बस खड़े हो जाना मौला की बारगाह में, कहना मौला हम मांगेंगे तो वो मांगेंगे जो हम चाहते हैं।
मगर तू हमें वो दे जिसकी हमें जरूरत है, हमारी दुनिया भी बन जाए, हमारी आखिरत भी बन जाए। जब भी रो। सैयद सज्जाद एक दिन गिरिया कर रहे थे। साहिल कहता है मौला मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ, मौला एक बात पूछूं? फरमाते हैं हाँ पूछ। मौला सबसे ज्यादा करबला में आपके बाबा को किसने पुकारा? सज्जाद रो के फरमाते मेरे भाई कासिम ने। फरमाया मौला वो कैसे? कहा करबला का इकलौता शहीद है कासिम, जिसके पांव रकाब में फंस गए थे। अब जिधर जिधर घोड़ा जा रहा था उधर उधर कासिम जा रहे थे। जबान पे था या मौला या। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयद शोदा के। पसे पर्दा मेरी माए बहनें सुन रही हैं, तुम्हारी गोदियों में जो बच्चे मौला उन्हें सलामत रखे। जिन बच्चों की शादियों का लिबास तुम आमादा करती हो मौला उन जवानों को सलामत रखे। मगर हाय रे फरवा ने जो लिबास बनाए थे अपने दूल्हे बेटे के लिए, उसे दूल्हा बनाने के लिए वो लिबास यूं ही रह गए। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयद शोदा के। चंद लिबास का तस्करा करबला में मिलता है, चंद लिबास पे गिरिया मिलता है, चंद लिबास का तस्करा महशर तक मिलता है। एक लिबास हुसैन का लिबास है, एक लिबास कासिम का लिबास है, एक लिबास अली अकबर का लिबास है, एक लिबास मुस्लिम के 2 बच्चों का लिबास। तारीख आप पढ़ें आपको मिलेगा ये वो लिबास है जिस लिबास पर बहुत मातम किया गया। एक लिबास और है अगर तुम्हें याद हो, जिस लिबास को ज़ैनब ने जब रोज़े रसूल और कब्र रसूल पे रखा, रसूल की कब्र हिलने लगी। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयद शोदा के। वो लो अपने बच्चे को फरवा पालती रही है मेरे लाडले। ए मेरे लाल, ए मेरे लाल, ए मेरे लाल, तू जब जंग करेगा तो ऐसी जंग करना, ऐसी जंग करना कि दुनिया याद करे। अजब नहीं, कासिम ने अपनी माँ से कहा और माँ बाबा का जनाजा तो वापस आया, पर तेरे बेटे की लाश नहीं, लाशों के टुकड़े लाए जाएंगे। एक नजर है, एक नजरिया है, एक अंदाज है, एक सोच है, उलमा की खिदमत में पेश कर रहा हूं। ज़व्वार बैठे हैं, अगर तुम्हें मेरी बातें समझ में आ जाएं तो गिरिया कर लेना। उस माँ को पुरसा दे लेना जो जनाजे के टुकड़ों में अपने बेटे का रुखसार ढूंढ रही थी, जो लाशे के टुकड़ों में अपने बेटे का रुखसार ढूंढ रही थी। उलमा की खिदमत में पेश कर रहा हूं ये जुमला, अगर महसूस कर सको तो महसूस कर लेना। 2 जिस्म है करबला में, 2 जिस्म है करबला में। मुझे नहीं पता मौला मुझे अल्फाज देता कि मैं आसानी से समझा सकूं। करबला में अब्बास का जिस्म सबसे बड़ा जिस्म था, अब्बास का कद सबसे बड़ा। कासिम इतने छोटे थे कि जब गिरे तो अपनी माँ को आवाज दी। उलमाए नफ्सियात फरमाते हैं जब बच्चा बचपने की सरहद में होता है, हर तकलीफ में अपनी माँ को पुकारता है, हर तकलीफ में अपनी माँ को पुकारता है। मुझे नहीं पता मासूमा, मुझे ताकत दे मैं तुम्हें समझा सकूं। अब्बास का जिस्म बड़ा था, अब्बास का जिस्म बड़ा था, अब्बास का जिस्म बड़ा था। फिर दोहरा रहा हूं, अब्बास का जिस्म बड़ा था, अब्बास का जिस्म बड़ा था। कासिम का जिस्म बचपन की हालत में, उस हालत में जो 12-13 साल के बच्चे का जैसा जिस्म होता है वैसा जिस्म था। मगर मैं तुम्हें कैसे बताऊं, करबला की जमीन पे, करबला की जमीन पर जब 2 लाशें सजाई गई तो एक लाशा छोटा था, दूसरा लाशा बड़ा हो गया। मैं तुम्हें शायद न समझा पाऊं मगर मेरे जुमलों को याद रखना, घरों तक रोते हुए जाओगे।
घरों तक रोते हुए जाओगे। जो लिबास पहन के गए थे मौला कासिम, और आसानी से समझा, जो लिबास पहन के गए थे मौला कासिम वो बड़ा लिबास था। कासिम छोटे थे, लिबास बड़ा था। कासिम को सिपाही का लिबास पूरा नहीं हो रहा था, बड़ा हो रहा था। मगर जब कासिम लाए गए हैं तो लिबास बड़ा हो चुका था। मेरे पास इससे ज्यादा अल्फाज नहीं जो तुम्हें समझा सकूं। सुबह को अपने चचा के पास खड़े हैं, इजाजत मिल जाए, इजाजत नहीं मिली, इजाजत नहीं मिली। फिर चंद लम्हों के बाद आए, इजाजत नहीं मिली। फिर कुछ देर के बाद आए, इजाजत नहीं मिली। फिर कुछ देर के बाद इजाजत नहीं मिली। बार बार आते रहे, इजाजत नहीं मिली। खेमे के बाहर, हुसैन के खेमे के बाहर बड़ी बेचैनी में कासिम कुछ यूं बैठे कि उंगलियां बाजू में बंदी तावीज से टकराई। तावीज खोली, बाबा का खत देखा, दौड़ते हुए चचा के पास आए। चचा ने खत लिया, पढ़ना शुरू किया। बस एक आवाज दी, बहन ज़ैनब मेरे कासिम को तैयार कर दो। जज़ाकुमुल्लाह, तुम्हारी सदाए गिरिया बुलंद हो गई, लेकिन अपनी गिरिये की आवाज इतनी बुलंद रखा करो ताकि सज्जाद इमाम वक्त से कहे, मेहदी मेरे इन चाहने वालों का ख्याल रखना। जज़ाकुमुल्लाह। तुम्हारा इमाम वक्त तुम्हारे साथ बैठा है। जुमला सुनो, अगर महसूस कर सकते हो तो महसूस कर लेना। वो लोग कासिम तैयार हो गए, वो लोग कासिम आमादा हो के हुसैन के पास खड़े हुए फरमाने लगे, जा बेटा घोड़े पे सवार हो जा। घोड़े पे सवार होने के लिए आगे बढ़े। फरमाया मेरे लाल जरा ठहर, वापस आ जा। वापस बुलाया। गरीबान कासिम पे चाक किए। चाक होते गरीबान को देखकर कासिम फरमाते हैं, चचा गरीबान क्यों चाक कर रहे हैं? फरमाया मेरे लाल, अरब का एक उसूल है, जब यतीम बाहर जाता है उसके गरीबान चाक कर दिए जाते ताकि तुझे कोई यतीम समझ के छोड़ दे। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश्शोहदा के। वो लोग कासिम मैदान में आए, हमले किए। वो 12-13 साल का सिन है, याद रखिएगा। 35 लोगों को वासिले जहन्नम किया, ज़हन में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। करबला के चंद शहीद ऐसे हैं जिन पर सबने मिलकर हमला किया। उसमें से एक कासिम है, उसमें से एक कासिम है जिनके साथ ऐसा हमला किया गया कि मैं लफ्ज बोल रहा हूं, समझना तुम्हें होगा। रकाब में पांव फंसे हुए हैं, जबान पे अपने मौला को पुकार रहे हैं। हुसैन ऐसे दौड़े, उलमा फरमाते हैं किसी के गिरने पर हुसैन ऐसे नहीं दौड़े जैसे कासिम के गिरने पे दौड़े। मगर जब तक कासिम के पास पहुंचते कासिम गुम हो चुका था, क्योंकि कासिम जब तक जिंदा थे तब तक कासिम थे। जैसे ही घोड़े से गिरे कासिम टुकड़ों में बढ़ गए। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लामा मरहूम रशीद तुराबी को नकल कर रहा हूं। हुसैन जमीन पे बैठे, हुसैन ने घुटने टेके, हुसैन ने अमामा उतारा, हुसैन ने आसमान देख के कहा, वाह गुरबता, मेरे अल्लाह में गरीब हो गया। हुसैन को दिखाई नहीं दे रहा था। अबा बिछाई, एक टुकड़ा उठाया रखा, दूसरा टुकड़ा उठाया रखा, तीसरा टुकड़ा उठाया रखा। अभी हुसैन टुकड़ों को रख ही रहे थे कि अपने बाजू पे किसी पंजे का दबाव महसूस किया। पलट के देखा, भाई हसन मौजूद थे। एक टुकड़ा उठा के दिया। हुसैन खुद को अकेला न समझना, हुसैन अम्मा मौजूद है। जज़ाकुमुल्लाह। कासिम के टुकड़े को जमा किया, गठरी तैयार हुई, गठरी तैयार हुई, अपने कांधे पे रखा, खेमे में लेके आए। ज़ैनब से कहा, बहन ज़ैनब, बहन ज़ैनब, भाभी उम्मे फरवा कहाँ है? भाभी कहाँ है? इससे पहले कि वो आए लाशों को सजा दो। ज़ैनब सवाल कर रही है, भैया लाशा कहाँ है? तुम तो उर्दू समझते हो। अल्लाह माज़रन ज़ैदी का जुमला नकल कर रहा हूँ। हुसैन कह रहे हैं लाशे को सजा दो। ज़ैनब कह रही है, भैया लाशा कहाँ है? गठरी उठाई, ज़ैनब के सामने
جزاکم اللہ۔ بس آخری جملہ اور مصائب کا، ایران کے ایک شاعر نے کیا عجیب نظریہ پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب حسین قاسم کے لاشیں، اسے اردو میں ضرور کہنا میرے بھائی، جب حسین قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے کو اٹھا رہے تھے، حسین نے قاسم کا چہرہ دیکھا، زخم سے آنکھیں بند تھی، بند آنکھوں کو دیکھ کے کہا بیٹا مانا تو حسن کا بیٹا ہے پر حسین بھی تو تیرا چچا ہے، بیٹا آنکھیں کھول دیکھ تیرا چچا غریب ہو گیا۔ ولا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون۔ آج جہاں جہاں پر بھی انسانیت زندہ ہے، وہاں وہاں حسینیت زندہ ہے۔ حسین نے بھی کہا یزید تو رہے گا تاکہ پتا چلے حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ گزشتہ برس کی طرح اس برس بھی شہدائے کربلا کو یونیورسٹی اردو کی طرف سے خراج عقیدت صدائے کربلا۔ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس کا سلسلہ۔ رسول نے حسین کو کہا آپ ہدایت کا چراغ ہیں کہ ایک امام حسین سلام اللہ علیہ اگر بیعت نہ کرتے تو یزید کی سرکار چلی جاتی۔